Good morning. Today we will discuss about the remaining portion of this chapter. We have to discuss in a previous class about the powers of Supreme Court, how to appoint the judge of the Supreme Court, okay, and what is the time period of the judge, what is the qualification. I have to told you about all these things. Now, today we will discuss appealated jurisdictions. Three types of appeals can be made in the Supreme Court under the appealated jurisdictions. मतलब हम तीन तरीके से जो है अपील कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में. तो पहला है आपका केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस. सेकंड है आपका अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस. थर्ड है आपका अपील अगेंस्ट द क्रिमिनल केसेस. मतलब हम तीन तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. ओके. Now, any person can approach a Supreme Court against the judgment, order, or right given by the High Court on any cases only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involve any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contain any important question of law, and hence the petitioner petitioner can appeal in the Supreme Court for the same. If any such certification is not given by the High Court, and if the petitioner approaches of the Supreme Court, then in such circumstance, if the Supreme Court find that any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's petitioner's appeals. But in any of the circumstance, only the petitioner who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court only under the reason that a false judgment is issued by the High Court or any other courts. It means जो हाई कोर्ट में जो अपील की जाती हाई कोर्ट में जो जजमेंट, जो हाई कोर्ट के जो जज द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, या कोई पर्सन है या कोई पार्टी है, तो अगर मान लीजिए किसी तरीके से वो गलत जजमेंट है या गलत फैसला है, या फिर एक्चुअल में जो है जो पिटिशनर होता है जो कि पार्टी का केस लड़ रहा होता है, तो वो उनको लगता है कि हमें हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला है, या कोई ऐसी कंडीशन जो उनको लगता है कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करना चाहिए कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, या हमें हमारे जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, या इसके अलावा हाई कोर्ट के अलावा कोई और भी अदर कोर्ट्स हैं जो कि उन्होंने जजमेंट दिया हो, उन जजमेंट्स को उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है. अपील जो पिटिशनर द्वारा और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज होता है उस चीज़ को क्या करता है, फाइंड आउट करता है, देखता है कि ये किसी तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है वायलेटेड तो नहीं करता. ओके. और फाइंड आउट करेगा जो भी है, और अगर ठीक रहता है तो उस चीज़ को क्या किया जाएगा, मतलब सही कर दिया जाएगा. अदरवाइज़ अगर लगेगा कि वो गलत है तो उसको सज़ा दी जाएगी. तो इसी तरीके से मतलब अपील की जाती है. सेकंड है, इन केस ऑफ द सिविल केसेस, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट द केस इन्वॉल्व्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस of law, and that can case held general importance, and it is necessary the Supreme Court decided, then a appeal can be made in the Supreme Court. Judgment of any civil cases involve a sum of the rupees or lakhs or more can be challenged in the Supreme Court. मतलब सिविल केसेस से रिलेटेड जो भी अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ओके, तो उसमें भी देखा जाता है कि एक तरीके से जो सिविल है वो एक तरीके से मतलब जजमेंट दिए जाते हैं, उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. ओके. किसके लेकर के, हाई कोर्ट में जजमेंट दिए गए. ओके. In case of the criminal case, if any lower court has the acquitted the criminal from a capital punishment, and in that case the High Court has given capital punishment to the criminal,
then in such as a circumstance an appeal can be the made in the Supreme Court. The Supreme Court can review its own judgment. It can transfer cases that are going on in other courts to the Supreme Court. The Parliament can increase the powers of the Supreme Court by the forming act. इट मीन्स जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे हाई कोर्ट ने मान लीजिए सपोज दैट फांसी की सज़ा, इसको बोला जाता है क्या, कैपिटल पनिशमेंट। अगर इस तरीके से जो है कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता है तो जो पर्सन होता है या जो क्रिमिनल होता है उसका जो जज, उसका जो मतलब एडवोकेट होता है, ओके, तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो है अपील की जाती है और उसकी याचिका लगाई जाती है, जिससे क्या है उसको मतलब इंसाफ मिल सके। अगर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया है, कैपिटल पनिशमेंट, हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस चीज़ की क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ओके, और फाइंड आउट करेगा, देखेगा कि कहीं ना कहीं जो है वाकई में मतलब एक तरीके से रिव्यू जो है ओन जजमेंट दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ओके, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ओके, तो अगर लगता है तो इस तरीके से मतलब उस चीज़ की फाइंड आउट मतलब उसको सर्च किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है मेन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और बाकी अदर जजेस होते हैं, उनकी पीठ होती है, तो उनको केसेस हैंड ओवर किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस बेसिस पे, और उनको जो है पनिशमेंट दिया जाता है। Advisory jurisdictions: if the president feel that any particular matter or questions hold importance from the point of view of public welfare, then the president can take a counsels of the Supreme Court by the sending the matter or questions to the Supreme Court for the consideration. Under this provision, the president can avoid counsels from the Supreme Court in the question pertaining to law, reality, and the constitutional interpretations or relevancies of any bills. But if the Supreme Court find it unnecessary to consider or give opinion on the sand matter, it can send it back to the president, and it is not mandatory for the president to follow the advice or counsels by the Supreme Court. मतलब एडवाइजरी जुडिक्शंस होता है, सपोज दैट कोई बिल है या कुछ ऐसा मतलब कंडीशंस होती है, लगता है कि, तो उसका क्या है मतलब प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर होती है और जुडिक्शंस के पास भी पावर होती है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है। तो जो केसेस होते हैं इस तरीके से रिलेटेड टू बिल्स या जो भी हैं, तो वो पहले क्या है मान लेते हैं, उनको लगता है कि प्रेसिडेंट द्वारा उनको रिटर्न कर दिया गया है, मतलब उस प्रोविजंस को वापस कर दिया गया है, ओके, बिलों को वापस, तो उसको क्या करता है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको मतलब एनालिसिस करके फाइंड आउट करता है और अपना ओपिनियन देता है। देन उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास वापस जाता है साइन होने के लिए वो, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, isn't it? Others powers: Supreme Court has the powers to review its own judgment or decide decisions. The Supreme Court can punish for contempt of the court. Supreme Court has a power to nullify and steps law taken by the executive if in violate the constitution. This right has been given to the president in the constitution under the provision of right to constitution remedies. Supreme Court is thus the guidelines and the सेवियर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अदर पावर्स भी ये रहती है कि जो मतलब जो है राइट्स दिए गए ह्यूमन राइट्स, उनका जो है कहीं ना कहीं वायलेशंस नहीं हो रहा हो, या एग्जीक्यूटिव जो होता है कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहा है, या इफ़ एनी केसेस इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का अगर कहीं पर भी किसी तरीके से वायलेशंस होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, उसके स्टेप्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं। ओके, नाउ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड अन एविडेंशियल वैल्यू एंड व्हेन एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कोर्ट्स आर द presented, no objections can be taken against it. And the judgment and the decisions of the Supreme Courts are
considered as a permanent document and all are the bound to the accept it. They are used references by the subordinate courts while a given judgment and decisions. Any courts showing it's a contempted or disapproval can be punished. इट मीन्स जो कोर्ट के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई भी पनिशमेंट दिया जाता है, कोई भी केसेस, क्रिमिनल केसेस हो, सिविल केसेस हो या जनरल केसेस हो, जो भी है, चाहे वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हो, वो सारे जो केसेस के इंफॉर्मेशन डिटेल्स उनके पास एज ए कोर्ट्स के पास सारी होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कभी भी कहीं ना कहीं जो है इन कोर्ट से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ओके, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट है आपका हाई कोर्ट। वन ऑफ द की पोजीशन इन द कंटिन्यूस hierarchical hierarchical pyramid of the Indian judiciary in occupied at the state level by the High Court. High Court is the apex court of at state level. The Constitution provides one High Court for every state. The President has the power to from one High Court of the two or more states. In India, there is one common high court for the state of Punjab, Haryana, and Chandigarh. Similarly, under the jurisdictions of the High Court of the Assam fall the states of Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram, and Arunachal Pradesh. इट मीन्स जो हाई कोर्ट है वो है, अगर देखा जाए बेसिकली तो हर स्टेट्स में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है कि वो दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए मतलब एक हाई कोर्ट होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट है। ओके, मतलब वन एक कॉमन हाई कोर्ट है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक असम में जो है हाई कोर्ट है, उसके लिए मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट है ये असम में। तो इस तरीके से जो है मतलब कुछ हाई कोर्ट्स जो हैं कई स्टेट्स के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है कि उस एरिया में या उस कुछ तीन या दो से अधिक या एक से अधिक स्टेट्स के लिए मतलब जो हाई कोर्ट डिसाइड किया जाता है। वैसे बेसिकली हर स्टेट्स में एक हाई कोर्ट होता है। ओके, नाउ फॉर्मेशन। The Chief Justice of High Court is appointed by the President in a constitution with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the representative state. The Chief Justice of High Court is consolidated in the appointment of the other judges of the High Court. A President is a representative of the Prime Minister and the Cabinet Ministers, and hence is only the president appoint a chief justice by the after the discussion and the conciliations with the prime minister and the cabinet ministers. इट मीन्स जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन वो क्या है अपॉइंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, बट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसकी एडवाइजरी के थ्रू उसे डिस्कशन करके, ओके, उनके मतलब उसके कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ जो है क्या किया जाता है, कंसल्ट करके प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, किसको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ओके, और एक तरीके से देखा जाए तो मतलब हर मतलब स्टेट्स में जो है अगर देखें तो प्लेस जो है गवर्नर द्वारा दिलाई जाती है उसमें, किसको, चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको। और जो है प्रेसिडेंट होता है वो एक तरीके से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स का। ओके, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। द एज लिमिट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स। दे कैन टेंडर रजिस्ट्रेशन एड्रेस्ड टू द president. The president can remove any of the judges of a high court through the process of the impeachment carried out in the parliament and on proving the charge of the misconduct or malpractice of the judge. The judge of the high court can be the transferred anywhere in India. The number of the judges is not the same in all the high courts of India. If the president feels that the workload of the high court has increased,
then he can appoint ad hoc in charge judges to the High Court for a period of 2 years. All the work of the Supreme Court and High Court is carried out in an English language bill if any legislative assembly of any state passes a resolutions that the work of the High Court of related states be carried out in the language of the state, that then work of the High Court of that state सी फंक्शंस इन द लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट. इट मीन्स जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी 62 ईयर्स जो है एज होती है, मतलब जो बोलते हैं उससे ज़्यादा, मतलब एज लिमिट इसको बोला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू ही उसको हटाया जा सकता है. इसको बोला जाता है प्रूविंग द चार्ज. ओके, मतलब मिसप्लेसमेंट के थ्रू, एक मिसप्लेसमेंट कैरी आउट के थ्रू कहीं ना कहीं उसको पार्लियामेंट में हटाया जा सकता है, मतलब पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं प्रूविंग चार्ज होता है. ओके, उसके थ्रू. और अगर लगता है प्रेसिडेंट को कि किसी हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि अदर जजेस को ये मतलब अपॉइंट किया जा सकता है एडॉक बेसिस पे. ओके, ताकि उस वहाँ के वर्कलोड को कम किया जा सके. और जो है बेसिकली जो कोर्ट्स में जो लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को ही कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है मोस्ट ऑफ द. ओके, नाउ व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द judge of the high court? As per the provision of the constitution, the persons eligible to the appointed to the high court should be a citizen of India, should have to serve for a minimum period of 10 years on any of the judicial post in the lower court of the Indian state, should have at least 10 years of practice as an advocate in the high court, should be a distinguished jurist, constitutional expert, or famous law maker. As per the opinion of the president, should be below 62 years of age. जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो 62 ईयर्स से कम होना चाहिए पर्सन, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए. मिनिमम 10 ईयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर, मतलब लोअर कोर्ट्स या इंडियन स्टेट्स का जो लोअर कोर्ट्स होता है उसका जुडिकल पोस्ट का. ओके, मिनिमम 10 ईयर्स का. ओके, और एटलीस्ट 10 ईयर्स प्रैक्टिस होना चाहिए एडवोकेट की हाई कोर्ट में, मतलब उसने जो है एडवोकेट किया हो हाई कोर्ट के अंदर 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स तक उसको मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, और जो है प्रेसिडेंट की नज़रों में इसको बोला जाता है कि एक्सपर्ट होना चाहिए, फेमस लॉयर मेकर होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. ओके, the judge of the high court on has to take an oath of secrecy in front of the governor of the state or any persons appointed by the governor and sign the corresponding place. मतलब यहाँ पे बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सॉरी हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको जो प्लेस दिलाई जाती है वो गवर्नर द्वारा दिलाई जाती है. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको जो प्लेस दिलाई जाती है वो बाय द प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है. द जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 जुडिक्शंस. जो हाई कोर्ट के 3 जो है पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. पहला है आपका ओरिजिनल जुडिक्शंस. अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शंस द हाई कोर्ट इज empowered to issue directions, order, or rights, includes right in the nature of the habeas corpus to any person's authority and any government in case of the violations of the fundamental rights of citizens. The High Court has the authority in the case related to the companies, marriages, divorce, and alumni, the cases of the contempt of the court, land revenue, and its embarrassment, land reformer, and return can also be carried out in the High Court. Also, write the petitions, challenges in the judgment given by lower courts of the civil and criminal court
can be made in the High Court. These petitions challenge the provisions provided in the entrance examination. It means जो original court jurisdictions होता है उस original jurisdictions में जो छोटे सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, उनकी जो चैलेंजेस, उनके जो जजमेंट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स के जो जजमेंट होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं उनके जो जजमेंट्स होते हैं उनसे सेटिस्फाई ना होने के साथ साथ में जो पर्सन्स होते हैं वो सीधा हाई कोर्ट में जा कर के क्या करते हैं, अपील करते हैं। इट मीन्स हाई कोर्ट में जा कर के उन चीज़ की याचिका दायर की जाती है। और जो केसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द उनको जो सुनवाई की जाती है ओरिजिनल जुडिक्शंस में की जाती है हाई कोर्ट के अंदर। जैसे आपके मैरिजेस हो गए, डिवोर्सेस हो गए, ओके, कंपनीज से रिलेटेड, तो ये सारी केसेस जो हैं किस में किए जाते हैं, हाई कोर्ट्स में किए जाते हैं, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट है आपका एपिलेटेड जुडिक्शंस। अंडर द एपिलेटेड जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, द कोर्ट्स हियर द petitions against the civil and criminal cases, any petitions challenging the judgment of the lower courts and the tribunal can be the made in the high court in case as the session court has the issues by the judgment punishment that the caused for more than 4 years, then the petitioner can be challenge the judgment in a high court. If any accused is given a capital punishment by the session court in a case of the murder for which a less several punishment issued by the lower court, then in such conditions the judgment can be challenged in the high court. The petitioner who is the unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approaches a high court. The court has a power to decide upon important questions pertaining to law including constitutional interpretations. इट मीन्स जो अपील जुडिक्शंस होते हैं, अपील जुडिक्शंस मतलब जैसे मान लीजिए जो छोटे केसेस, छोटे जो कोर्ट्स होते हैं, तो उनमें अगर लगता है कि किसी पर्सन को जो कोर्ट्स द्वारा जजमेंट जो दिया गया है वो जो है उससे जो पिटिशनर होता है उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, जो उससे बड़ा कोर्ट्स होता है उसमें अपील कहीं ना कहीं करता है। जैसे आपका सिविल कोर्ट्स हो गए या छोटे सब कोऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हो गए, अगर वहाँ पे कोई जजमेंट दिया गया है बाय द कोर्ट्स द्वारा, तो वो आगे जा कर के उस केस मतलब उस जो है उसके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आगे जा कर के क्या करेगा, हाई कोर्ट में जा कर के क्या करेगा, अपनी पिटिशंस दायर करेगा। ओके, now administration jurisdictions, each high courts has the authority and powers to supervise the working of all the subordinate courts and the tribunal of the states of or its a region. If the high court feel it is the necessary, then it can ask cases papers from the subordinate courts and then carry out of the case proceeding. The court can be frame general law to the control the producer and functioning of the courts under in its power. The high court can decide certain criteria and tabular form of the various type of fees. All these provisions should be in the accord and harmony with the constitution. The high court can guide and direct the subordinate court in the matter of the maintaining record and entries. इट मीन्स जो हाई कोर्ट होता है वो सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, उनको डायरेक्टली मतलब एक तरीके से एडवाइस दिया जाता है, उनको मतलब बोला जाता है कि सारी चीज़ों को एज अ रिकॉर्ड हर चीज़ मतलब उनको एक नोटिस जारी किया जाता है बाय द हाई कोर्ट द्वारा। छोटे कोर्ट्स होते हैं उनके लिए कि जो केसेस होते हैं उन केसेस की रिकॉर्ड्स और उनको मेंटेन करना, मतलब सारी एंट्रीज एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। मतलब गाइड करता है कौन, हाई कोर्ट गाइड करता है सब कोऑर्डिनेट्स कोर्ट्स को रिकॉर्ड्स के बारे में। एज अ पेपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, एक प्रोसीजर के थ्रू जो है किस तरीके से फंक्शनिंग की जाती है, किस तरीके से केसेस मतलब जो है सॉर्ट आउट किए जाते हैं, ऐसा सारा रिकॉर्ड्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन जुडिक्शंस के थ्रू किया जाता है। ओके, बाय द हाई कोर्ट द्वारा। क्लियर। जैसे अपील जुडिक्शंस की थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि ये एक तरीके से ये रहता है कि छोटे छोटे कोर्ट्स में जो अपील मतलब जो उनके जजमेंट से मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो हायर कोर्ट्स में मतलब बड़े कोर्ट्स उससे बड़े जा कर के पिटिशंस दायर की जाती हैं।
ओके, तो जो होते हैं लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स के थ्रू जो है कोर्ट्स के अंदर पिटिशंस दायर की जाती हैं। ओके, अपील की जाती है कि भाई हम, जैसे मान लीजिए किसी ने जजमेंट सुना दिया, मान लीजिए फांसी सुना दी छोटे से, मान लो, ठीक है, या फिर किसी ने क्राइम किया हुआ है, क्रिमिनल है, तो उसको सज़ा सुना दी 10 साल की, 50 साल की, तो क्या होगा कि हाई कोर्ट में जा कर के जो क्रिमिनल है उसका लॉयर अपील करेगा और उसकी जो है सज़ा, जो है हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कम कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि जो है सज़ा सुना दी एक बार तो वो कहीं ना कहीं मतलब पनिशमेंट दे दिया तो वो पनिशमेंट चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो चेंज कर सकता है कि सब कोऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के पनिशमेंट्स को या जजमेंट्स को। द हाई कोर्ट occupies the places of the court of records. The high courts punish its judgment decisions in a organized form. The judgment and decisions are binding a final for they can use these records. Courts decisions and judgments are references while the taking decisions of the various cases in future. The lawyers use these punishment, sorry, published judgment and the decisions are इट मीन्स इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं हाई कोर्ट्स के पास, जो छोटे छोटे कोर्ट्सों द्वारा जो जो भी हैं एज ए फ्यूचर के लिए, वो रिकॉर्ड्स जो है क्रिमिनल के या सिविल केसेस से रिलेटेड या फिर आपके मतलब जनरल केसेस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जजमेंट्स या जो भी हैं डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड एज ए इन फ्यूचर जो है हाई कोर्ट के पास होते हैं। और ये हाई कोर्ट जो है सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए मतलब एडवाइस और गाइड किया जाता है कि उनको किस तरीके से रिकॉर्ड्स रखना है, और सारे रिकॉर्ड्स जो हाई कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। इजंट इट? नाउ वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास सब कोऑर्डिनेट अबाउट द सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच।